Welcome back, everyone. We are ready with our next lecture on chemical kinetics. I hope you guys are thoroughly revising the concepts and are solving problems as well. So, the topic for today's discussion will be sequential reaction. We can also call it chain reaction. And the second thing which we are likely to take up in today's session is an important topic, that is a steady state approximation. See, these two topics are again more oriented towards advanced. We will I will take up one more lecture on kinetics, that will be on effect of temperature, collision theory, and other parameters, effect of catalyst likewise. So that will be relevant for every exam, but still I will encourage everyone to just go through it. That will improve your understanding of kinetics, and it will help you develop a core understanding at the core topics in a better way. Fine. So let us continue with this session. So today's topic, as you know, it is steady state approximation. See, sorry, sequential reaction and then steady state approximation. So we'll start with the sequential reactions. So let us start our topic, and the topic is sequential, or you can say chain reactions. Sequential or chain reaction. See, it is a simple concept. Like, let's say we have started with a reaction where A gives B, B gives C. It can go into multiple steps, but a simple chain reaction is the one in which we'll take three reactants. Let's say we started with A, and with rate constant K1 we have got B, and then with rate constant K2 we have got C. Fine. तो करना क्या है, A से B बन रहा है, B से C बन रहा है. So अपने को करना क्या, let us write the equations. Minus dA by dt, that is the rate of disappearance of A, is K1 times A. Mark it equation 1. Similarly, dB by dt. See, in this case, we can say dB by dt is K1A. This is the rate at which B is getting formed, and it is minus K2 times B. This is again getting dissociated into C. So this is the complete rate of formation of B. Now we can also write dC by dt. See, dC by dt is K2B. So these are the equations for us. Fine. These are the equations for us. Now what do? We need to write integrated. We have to write functions for AT. So AT is quite easy. We have already learned AT is A naught e to the power minus K1T. So that is pretty much clear. We need to write expressions for BT and CT. Fine. So we need to write equations for BT and CT. So it's quite easy. Let us write from equation 2. This is from equation 2. Let us say from equation 2, what have we got? dB by dt plus K2B is equal to K1A. Fine. So we can write dB upon dt plus K2B is K1A naught e to the power minus K1T. So I hope it is clear. Now what we can write it as, this is a, let us say multiplying both sides by e to the power K2T. So let us see what we get. We get we have multiplied it because the integral will become simple. It will become easier to write the combined expression. This is our expression, into e to the power K2T equals K1 A naught e to the power K2 minus K1 into T. I hope it is clear. It becomes K1 A naught K2 in minus K1 into T. Now, don't you think this expression is actually differentiation? This is d by dt of b into e to the power K2T. See, if you differentiate this term, then you will get this term. If you differentiate this term, that is d by dt of b into e to the power K2T, then you will get this term. So can you directly write, it is simply d by dt of b into K2T
this is equal to k1 a naught e की power k2 minus k1 into t. Fine. So we can write integral of d b e की power k2 t is equal to integral 0 to t k1 a naught e की power k2 minus k1 t dt. So what do we get? We get b into e की power k2 t is equal to k1 a naught k2 minus k1 e की power k2 minus k1 t minus, if you add मतलब if you substitute the value of t to be 0, तो अपने को देखते हैं क्या मिलता है. यदि हम t की वैल्यू सीधा 0 पुट कर देते हैं तो लेट अस सी व्हाट वी गेट. यदि हम सीधा t की वैल्यू क्या पुट करते हैं 0, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें इस केस में मिलेगा सीधा सा 1. ठीक है ना, e की पावर 0 इज सिंपली 1. तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. तो let us simplify it a little further. Then what do we get? B is equal to k1 a naught k2 minus k1. यह आ जाएगा e की पावर k2 t minus k1 t और ये minus k2 t minus e की पावर minus k2 t. ठीक है, तो ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. तो अपने को b के लिए क्या एक्सप्रेशन मिला? अपने को b के लिए एक एक्सप्रेशन मिला है k1 a naught अपॉन k2 minus k1 e की पावर माइनस k1 t माइनस e की पावर माइनस k2 t. तो आई होप ये बात आपको बच्चों समझ में आई होगी. तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किया क्या है. सी हमें क्या करना है, एक सीक्वेंशियल और चेन रिएक्शन है जिसमें हो क्या रहा है, ए से बन रहा है बी और बी से वापस बन रहा है सी. ठीक है, ए से बन रहा है बी और बी से वापस बन रहा है सी. फाइन. तो हमें क्या करना है, हमें एटी वीटी और सीटी के एक्सप्रेशन लिखने हैं. तो एटी तो हम जानते हैं नॉट ई की पावर माइनस के टी होगा, k1 t होगा सॉरी. फिर हम लिख सकते हैं ये वाली टर्म की फ्रॉम इक्वेशन टू dv by dt प्लस k2b इज इक्वल टू k1a. ये इस फॉर्म में आ गया, हमने k2t से मल्टीप्लाई किया तो इसका एक्चुअली डिफरेंशियल था. तो हमें b का एक फंक्शन मिल गया. ठीक है ना बच्चों. तो अब अपन आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं. तो हमें b का फंक्शन तो मिल गया था. अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए ct. तो हम जानते थे कि dc by dt जो है इट इज k2 टाइम्स b, है ना, इट इज k2 टाइम्स b. और हमें पता ही है कि हमने अभी b निकाला है तो b की वैल्यू पुट कर देते हैं. b क्या है? k1 a naught k2 माइनस k1 e की पावर माइनस k1 t माइनस e की पावर माइनस k2 t. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल dc इज इक्वल टू k1 k2 a naught k1 k2 a naught k2 minus k1 इंटीग्रल 0 टू t e की पावर माइनस k1 t माइनस e की पावर माइनस k2 t dt. ठीक है ना बच्चों. तो अब अपना c का एक्सप्रेशन क्या आएगा? तो फाइनली अपने पास जो c का एक्सप्रेशन आया वो कुछ इस तरह से आ गया k1 k2 a naught अपॉन k2 माइनस k1. हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो ये अपने को क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 माइनस e की पावर माइनस k1 t अपॉन k1, ये एक टर्म आया, माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस k2 अपॉन k2. आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी. तो ये आ गया किसके लिए, ये आ गया c के लिए. तो ठीक है, तो ये आ गया c के लिए. हमने b के लिए भी एक रिलेशन लिख दी. b के लिए रिलेशन क्या था बताओ? b के लिए रिलेशन था k1 a naught k2 माइनस k1, है ना, e की पावर माइनस k1 t माइनस e की पावर माइनस k2 t. ठीक है बच्चों, अब देखो समझने की कोशिश करते हैं कि
सी हो क्या रहा है कि इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं, जैसे हमने चेन रिएक्शन लिखी है, तो एक कंटेनर ले लेते हैं ए, ठीक है ना, ए से पानी जा रहा है बी में, ए से कहा जा रहा है पानी, बी में जा रहा है, और बी से पानी जा रहा है सी में। तो इसमें ए से बी जाने के रेट कांस्टेंट k1 है और यहाँ से यहाँ जाने की k2 है। तो हमने ए बी और सी तीनों के लिए फंक्शंस तो लिख ही लिए हैं। आई होप आपको ये वाली बात जो है वो समझ में आ गई होगी कि हमने ए बी और सी के लिए फंक्शंस तो लिख लिए हैं। अब अपने को चाहिए क्या, हमें इनके ग्राफ बनाना है। तो अब जरा समझने की कोशिश करो कि होगा क्या। केस 1 हम लेते हैं, केस 1 जब k1 k2 से बड़ा होगा, तो यानी जिस रेट से बी में पानी आ रहा है उसके कम रेट से पानी जा रहा है। तो सी होगा क्या कि एक सर्टेन टाइम तक, जैसे लेट्स से हम कंसंट्रेशन टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं, तो ए तो एक्सपोनेंशियली घटता ही जाएगा, इसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, और सी जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। अब बी की क्या कहानी है, बी एक टाइम तक बढ़ेगा, मैक्सिमा पे जाएगा, फिर कम होने लगेगा, और ये इस इसको हम टी मैक्स बोलते हैं। टी मैक्स को अपन बता देते हैं, इट इज द टाइम एट विच बी अटेन्स मैक्सिमा। ठीक है, ये उस टाइम में, तो इसको हम यदि समझने की कोशिश करें तो देखो हो क्या रहा है, पहले ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है, वो तो ऑब्वियसली होगा, एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज करेगा, और सी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। आई होप ये तो बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि बी, जैसे इसमें ज्यादा रेट से पानी आ रहा है और कम रेट से जा रहा है, तो बी बढ़ता रहेगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा खत्म होने लगेगा और बी उस पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद होगा क्या कि बी की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी, क्योंकि देखो इनिशियली टैंकर ए से पानी आ रहा था और बी में जा रहा था, तो एक पॉइंट, अब क्योंकि पानी ज्यादा रेट से आ रहा था और कम रेट से जा रहा था, तो इसमें तो पानी भरेगा ना, क्योंकि हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है dv बाई dt जो है, इसको हमने लिखा है k1a माइनस k2b। तो इनिशियली ए ज्यादा है और बी कम है और k1 भी k2 से ज्यादा है, तो ए पहले तो रेट बढ़ेगा और उसके बाद क्या होगा, बी बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। पहले पहले ए भी ज्यादा था और k1 भी ज्यादा है, तो इसलिए k1a माइनस k2b जो है वो पॉजिटिव होगा और बी बढ़ता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एक मैक्सिमा आएगा, और उस मैक्सिमा के बाद फाइनली जब बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है कम होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका इस तरह से ग्राफ आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। जैसे हमने कुछ चीजें सीखी हैं कि हमने एटी बीटी सीटी निकाला है। अब देखो केस 2, पहले केस में हमने k1 ग्रेटर देन k2 बताया, अब हम बताते हैं k1 लेस देन k2। मतलब देखो इस बार क्या हो रहा है, इस बार अपना ये a था, ये b है, और ये c है, ठीक है। और इसके रेट को अपन k1 डिफाइन करते हैं और इसके रेट को अपन k2 डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो हमने k1 k2 रेट्स डिफाइन कर दिए। अब देखो हो क्या रहा है, यदि इस बार हम dB बाई dt की बात करेंगे तो आएगा k1a माइनस k2b। अब देखो इनिशियली a ज्यादा है और b कम है, बट k1, अब इनिशियली b तो जीरो होगा ना। अब देखो हम इक्वेशंस लिख लें तो a के लिए तो बड़ी सी क्लियर है कि a जो है वो तो a नॉट e की पावर माइनस k1t है, और a तो सीधा सा हम समझ ही सकते हैं कि a जो है वो तो घटता ही जाएगा, इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि a तो घटेगा ही, इसमें और कोई चांस है नहीं। c का फर्दर रिएक्शन हो नहीं रहा, तो c तो बढ़ेगा ही। अब जरा हम बात कर लेते हैं b की। तो देखो बच्चों b की यदि हम बात करें तो इनिशियली एट t इज इक्वल टू जीरो हम बोले तो bt तो जीरो है और at a नॉट है। अब k1 कुछ भी हो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो इनिशियली dv बाई dt जो है वो धीरे धीरे, बट होगा क्या कि a का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा और b का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इस बार जो है वो लोअर मैक्सिमा बनेगा, बिकॉज यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी उल्टी आ रही है। सिंस यहाँ पर हम बोल सकते हैं k1 लेस देन k2, therefore bt will have a lower maxima, ठीक है।
समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मान लो यहाँ से पानी कम रेट से आ रहा है और यहाँ से ज्यादा रेट से जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा पानी नहीं भर पाएगा ना, इसमें कम ही पानी भरेगा। सो लाइकवाइज इसमें जो ग्राफ बनेगी हमारी बीटी के, वो थोड़ा सा जल्दी ही वापस आ जाएगी। ठीक है, इसको अपन ऐसे बना लेते हैं, बीटी का जो रिलेशन था वो जल्दी ही प्लॉट की आ जाएगी, और इस बार ये इसका टी मैक्स होगा। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा कि सीक्वेंशियल रिएक्शन में होता क्या है, ए से बनता है बी, बी से बनता है सी, सी से बनता है डी। तो इस तरह से हम K1, K2, K3 के रिलेटेड बहुत सारे रिलेशंस जो है वो हम लिख सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो इसमें एक इक्विलिब्रिया की भी स्टेट बन जाती है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट कब होगा वो देखते हैं। मान लो यदि हम सी के लिए बात करें, तो सी के लिए रेट क्या है, डीसी बाई डी जो रेट है वो है K1B माइनस K2C। अब यदि यदि डीसी बाई डी सेम हो जाए तो हम बोलेंगे जिस रेट से ये बन रहा है उसी रेट से ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये इसके लिए स्टेडी स्टेट हो जाएगी, मतलब इसका जो लेवल ऑफ वाटर है वो चेंज होगा नहीं। ठीक है ना, ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। चलो अभी हमें एक और काम करना है। हमें करना क्या है कि हमें निकालना है, जैसे हमने पढ़ा था बीटी का एक्सप्रेशन आया था अपने को K1 A0 K2 माइनस K1 e की पावर माइनस K1 t माइनस e की पावर माइनस K2 t। हमने एक चीज देखी थी टी मैक्स। टी मैक्स वो टाइम था जिसमें टाइम एट विच बीटी अटेन्स मैक्सिमा। तो हमें वो टी मैक्स निकालना है, हमें वो टी मैक्स निकालना है। तो चलो बच्चों निकालते हैं। आई होप अभी तक का जो पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। तो सी व्हाट हैव वी डन टिल नाउ। अभी तक हमने जो किया है वही पढ़ा है कि अपने पास एक रिएक्शन है ए से बी, बी से सी, इनके रेट कांस्टेंट्स अपन लिख पा रहे हैं। इनके रेट कांस्टेंट जो है फॉर्मेशन के, यहाँ K1 है और यहाँ पे K2 है। ठीक है, आपको ये बात तो बिल्कुल समझ में आ ही रही होगी। फिर जैसे A से रिएक्शन B में जा रहा है, B से रिएक्शन C में जा रहा है, और dB by dt यदि 0 हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। मतलब एक तरह से B का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, dB by dt 0 है, यानी कि B एक कांस्टेंट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब dV by dt 0 होगा तो जरा सोचो कि जब dV by dt 0 है तो उस पॉइंट पे B मैक्सिमा भी कब होगा, एट द अबव स्टेट। ठीक है, तो हमें वो T मैक्स निकालना था। तो देखो अपना dt का फंक्शन था K1 A0 K2 माइनस K1 e की पावर माइनस K1 t माइनस e की पावर माइनस K2 t। ठीक है, तो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि कब dV by dt जो है वो वाली टर्म जो है वो 0 हो जाए। तो देखो ये क्या आएगा, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, आएगा माइनस K1 e की पावर माइनस K1 t प्लस K2 e की पावर माइनस K2 इंटू टी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये आ जाएगा K2 e की पावर माइनस K2 t इज इक्वल टू K1 e की पावर माइनस K1 t। तो ये क्या मिला हमें, ये हमें मिल जाएगा K1 बाई K2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस ये K1 बाई K2 इंटू टी। तो अब क्या लिखेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अभी हम दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड पे लॉग लेने पे क्या आएगा, लेट अस सी दैट। ये आ रहा है वैल्यू K1 माइनस K2 इंटू टी इज इक्वल टू लॉग K1 बाई K2। तो अपना ये जो T है वो वही टाइम है जिसपे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैक्सिमा बनेगा। तो ये आएगा 1 बाई K1 माइनस K2 लॉग K1 बाई K2। ठीक है बच्चों, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, है ना।
तो देखो हमने किया क्या था, जैसे हमने पिछले बार एक ग्राफ ड्रॉ करी थी, तुम्हें याद होगा कि हम लोग टाइम की बात कर रहे थे कि जैसे हमने ये वाला केस बनाया था K1 ग्रेटर देन K2। तो होता क्या था कि ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो घटता जा रहा है, ठीक है, और सी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आता था जब बी मैक्सिमा होता था, उसके बाद वो कम हो जाता था। एक ऐसा पॉइंट आता था जब बी मैक्सिमा हो जाता था और उसके बाद वो कम होता था, राइट। तो हमें क्या करना था, हमें वो वाली टाइम इंटरवल निकालनी थी कि जिसपे जो है वो मैक्सिमा हो जाए। आई होप इट इज क्लियर। हमें वो पॉइंट निकालनी होती थी जहां पे वो मैक्सिमा हो जाए। सो लेट अस डू द सेम थिंग, है ना। वो पॉइंट हम लेबल कर लेते हैं यहाँ पे। तो वो पॉइंट कुछ इस तरह से आएगा। जस्ट ए मिनट।